Greetings to all the fantastic members of the Scholarship Guidebook community. Your presence here brightens our virtual space, and I'm thrilled to share valuable insights with you. Today's video is your key to unlocking the secrets behind a successful University of Milan scholarship application. Throughout the video, I'll provide comprehensive information on the scholarship summary, scholarship coverage, available programs, eligibility criteria, documents required, and the step-by-step guide on how to apply. Moreover, I've prepared an online apply video guide in the end of that video, specifically for students who may encounter challenges with the online application process. Before we start, please consider subscribing for future updates, giving a thumbs up if you find the content informative, and feel free to ask any questions in the comments below. Your engagement and support mean a lot to me. Scholarship Overview. The University of Milan Scholarship 2024 welcomes international students for master's programs without requiring IELTS. Benefits include tuition waivers, stipends, housing, health insurance, and travel support. Application for the academic year 2024 is open, showcasing the university's esteemed reputation, ranked 156 in Best Global Universities. Scholarship Summary. The University of Milan in Italy is offering fully funded scholarships for master's degree programs, open to applicants from all nationalities. This prestigious opportunity covers tuition fees, living expenses, health insurance, and travel support. Interested candidates should submit their applications by the deadline of March 31, 2024, to be considered for this scholarship. Scholarship Coverage. Complimentary university accommodation. Enjoy free accommodation at the university's housing facilities. Accommodation payment support. In case of unavailability, receive financial assistance towards securing accommodation. Free meals. Enjoy free meals at the campus canteen, guaranteeing healthy nourishment for the duration of your studies. Book allowance. Receive assistance with purchasing essential academic materials like textbooks, easing the financial burden of educational resources. Fee waiver. Benefit from exemption from university tuition fees, allowing you to focus on your studies without the worry of financial obligations. Annual stipend. Receive an annual stipend of €7,200, directly deposited into your bank account, providing financial stability and flexibility during your academic tenure. Private health insurance. Limited coverage provided for private health insurance. Travel support. Yearly travel supports to attend scientific events, provided at a fixed amount once a year. Programs offered. The university encompasses various faculties including law, medicine, exercise and sports sciences, science and technology, humanities, political, economic, and social sciences, veterinary medicine, language mediation and intercultural communication, pharmacy, agricultural and food sciences, as well as engineering and computer sciences. Eligibility criteria. To qualify for the University of Milan scholarship, applicants need to meet the following criteria. Students can apply to the master's degree program, so they must have completed an undergraduate degree. Students need to upload their bachelor's transcript and degree. All international applicants are eligible to apply. Documents required. To apply for admission to University of Milan, international students are required to submit the following documents. Bachelor's transcript. Bachelor's degree. Europass CV. Motivation letter. Passport. IELTS is not required. You can upload an English language proficiency proof. How to apply? Document preparation. Gather all the mentioned documents, including academic transcripts, language proficiency test scores, and recommendation letters, in preparation for the scholarship application. Application submission. Complete and submit the scholarship application form online, ensuring that all required documents are included before the deadline. Results awaited. After the deadline, await the results as the selection committee reviews applications and selects scholarship recipients. To know more about University of Milan scholarship, please visit the official website. Online Apply Video Guide. Just click on Apply Now and choose Master Program, check program requirements and deadlines and click on Enrollment.
डिग्रीज पे आ जाते हैं। देखिए मास्टर डिग्रीज इन्होंने दी हुई हैं, वो भी बेशुमार इनकी हैं। इन सब के अंदर प्री वैल्यूएशन ही होती है। मास्टर के अंदर मोस्टली चंद एक शायद कोई हो जिसके अंदर आपसे टेस्ट लिया जाए, लेकिन मास्टर में ऑलमोस्ट 98% आपकी प्री वैल्यूएशन ही होती है। अच्छा, अभी इन्होंने बाद में इनके 2 आर्ट्स के भी हैं, इसके अंदर भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसके अंदर भी आप ले सकते हैं। ये तो इनके डिग्री। अच्छा, नीचे भी इन्होंने एक डिग्री प्रोग्राम नीचे दिया हुआ है, ये देखिए अगर आप यहाँ आए तो इन्होंने बताया हुआ है प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम। इसके अंदर ये आपका होता है कि आपने जो अपनी डिग्री है वो दो कंट्रीज में करनी होती है, या 2 यूनिवर्सिटी या 2 कंट्रीज में प्लस होती हैं। मैंने फर्ज किया आप अपना एक सेमेस्टर जो है वो कर लेंगे यहाँ पे 1 साल, फिर दूसरा साल आप जर्मनी की यूनिवर्सिटी इनके साथ जोड़ेंगे। आप इनकी डिटेल आप चेक करना चाहते हैं, इन वेबसाइट पे जाएं तो आपको डिटेल मिल जाएगी। नीचे आ जाए, नीचे भी उन्होंने जो PhD के प्रोग्राम्स बताए हुए हैं, ये इनके PhD के प्रोग्राम्स हैं, इनके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इनकी आप डिटेल चेक कर लें, जाके जो PhD के स्टूडेंट हैं इनकी डिटेल चेक कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं कि आपने इसमें एडमिशन कैसे लेना है, उसके अंदर आपने फॉर्म वगैरह को कैसे फिल करना है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जो भी डिग्री के डेट इनकी डिफरेंट हो सकती हैं। आप पहले सबसे आपने अपनी डिग्री को सिलेक्ट करना है। डिग्री को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने उसके अंदर फर्दर अप्लाई करना है। फर्स्ट किया हम यहाँ से ये वाली डिग्री सिलेक्ट कर लेते हैं, मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हम चेक करते हैं। इसके अंदर यहाँ तो इन्होंने पुराना ही लिखा हुआ, लेकिन डिग्री इस वक्त इनके एडमिशन ओपन है। ये देखें, नीचे आ जाए, नीचे आने का जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स, ये तो रिक्वायरमेंट्स इसकी हो गई। आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें इसको। उसके बाद इन्होंने नीचे लिखा हुआ है एडमिशन एंड एनरोलमेंट। ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2024-2025। उसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है स्टार्टिंग इन्होंने 22 जनवरी लिखा हुआ है, और जो इसकी है डेट है, एंड डेट है वो 30 अप्रैल है। देखिए इसकी डेट काफ़ी डिफरेंट है उससे। वो जो मैंने आपको डेट बताई थी वो 31 मार्च थी, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर ये बता रहे हैं 30 अप्रैल। इसका मतलब है कि डेट्स में इनके फ़र्क है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। आपने जब भी अप्लाई करना है तो आपने इस पेज पे आना है, जिस पेज पे मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। इस लिंक पे आके जब आप प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे आके यहाँ पे जब आएंगे एडमिशन एनरोलमेंट, वहाँ जाके इसकी डेट आप चेक कर सकते हैं, वो किस डेट को ये इसकी जो है डेडलाइन है। अभी हम इसमें अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने एडमिशन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अगर आपका अकाउंट आपने नहीं बनाया हुआ तो नीचे आप आएंगे। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले अपने अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। इफ़ यू डोंट हैव एन अकाउंट यू कैन रजिस्टर एज एन एक्सटर्नल यूजर। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आप अपना फर्दर जो है प्रोसेस आप करेंगे। यहाँ से लिखा हुआ है चूज नेम, यहाँ से आप अपना कोई चूज नेम करेंगे, और उसके बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह आपने करना है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने सबसे पहले अपने नाम को चूज़ करना है, कोई भी नाम चूज़ कर लें। उसके बाद नीचे पासवर्ड, फिर अपना नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पे सेक्स, उसके बाद ईमेल एड्रेस के बाद मोबाइल नंबर के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद इसको टिक करके आपने रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देना। ये देखें, अभी इसने आपको आपका सारा आपका दे दिया है, और उसने आपको एक ईमेल भी भेजी होगी। आपने अपने ईमेल पे जाके इस चीज़ को कंफर्म करना है। वहाँ से कंफर्म करने के बाद फिर आपने अपना जो है लॉगिन होना। ये देखिए ना लिखा हुआ है चेक योर ईमेल एंड एक्टिवेट योर अकाउंट विद इन 24 आवर्स। अगर आप विद इन 24 आवर्स नहीं करेंगे फिर आपको दोबारा नए सिरे से नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करेगी। ईमेल के ऊपर आपने आना है, आके उसको एक्टिवेट करना है। आपको फिर एक और ईमेल आएगी, उस ईमेल को आपने खोलना है। उसके अंदर आपका उन्होंने यूज़र नेम दिया होगा और आपका ईमेल उन्होंने बताया होगा, लेकिन आपने जो पहली ईमेल है उसको तो आपने जाके वहाँ से एक्टिवेट कर देना है अपने अकाउंट को। जब आप एक्टिवेट उसको इस तरह करके कर देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपने इस पेज पे आ जाना है, इस वाले पेज पे। ये पेज भी मैं आपको दे दूंगा, इसका लिंक भी। इसके ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे जाना है जहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल। आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आके आप इस पोर्टल के ऊपर आके भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो मैंने वहाँ से की थी। वरना यहाँ से इस पेज के ऊपर भी अगर मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप इस पेज के ऊपर आए, यहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन अपनी पोर्टल पे जाके कर लें। फिर उसको करने के बाद आपने नीचे फॉर्म पे आ जाना है, जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह करके आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। और यहाँ पे ये देखें उन्हें स्टेप्स लिखे हुए हैं। अभी आपने इन स्टेप्स को इसके साथ चलना है और अपनी एप्लीकेशन को आपने फिल कर देना। यहाँ देखें, आपके यहाँ पे आके आपने सिटीजनशिप लिख देनी है।
यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये है, आपने इसको कर देना है विदाउट इटालियन टेक्स्ट फॉन्ट। तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो इस तरह आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपने नीचे अपना नाम लिखने के बाद नीचे आपने ये अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सिटी जो है, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, उसको करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अभी ये आपसे पूछ रहा है पर्सनल डाटा ट्रीटमेंट, उसके आपने यहाँ पे इसको एग्री करना है। एग्री करने के बाद टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपने इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि क्वालिफिकेशन कैटेगरी, आपने कहना है यहाँ पे फॉरेन, और फिर इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो है इन्होंने बताया हुआ है कि आपने स्टडी प्रोग्राम सिलेक्शन अपनी करनी है जिसके अंदर आपने एडमिशन लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दी हुई है 1 2 3, इस तरह करके आपने हर एक के अंदर जाके देखना है कि जो आपकी डिग्री जो आपने सेलेक्ट की थी पहले, जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था, तो आपने उसी डिग्री के नाम को यहाँ पे ढूंढना है। उसको ढूंढ के आपने उसी को यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ से ढूंढ लिया है मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये मेरी सेकंड के ऊपर आई है। इसको करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मुझे बता रहा है कि आपने करिकुलम इसमें से आप कौन सा इसके अंदर चूज करना चाह रहे हैं, कि स्पेशलाइजेशन जो भी है इसके अंदर डिजिटल हो गया, ये हो गया, ये इसमें से अंदर से एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट क्या मैंने इसको एक को सिलेक्ट कर लिया। इसको करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट पे कर दूँ। नेक्स्ट पे करने के बाद अभी मैं यहाँ इसको फिल करता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। चलो यहाँ पे आपने अपना कंट्री, फिर प्रोविंस, फिर उसके बाद एड्रेस के बाद यहाँ पे कोड, वो जो आपका हाउस नंबर है, उसके बाद टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ करने के बाद आपने फिर ये आपसे पूछ रहा है कि एंटरिंग करंट एड्रेस, इसको भी सेम ही रहने दें या आपने बदलना है तो बदल दें, बट सेम ही रहने दें आप, सेम ही होता है करंट एड्रेस भी ऑलवेज। तो इसको आपने फिर नेक्स्ट कर देना। इसको करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है आर यू ग्रेजुएट और या फाइनल ईयर स्टूडेंट, आपने कहना है यस ग्रेजुएट। इसके बाद आपने इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इस पेज के ऊपर आपने यहाँ पे डिक्लेरेशंस लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फॉरेन पासपोर्ट उसको चूज कर लिया, फिर उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर, फिर यहाँ पे इसने बताया हुआ इटली या अब्रॉड, आपने अब्रॉड कर लिया, फिर बाय आपने कर लिया पाकिस्तान, ऑफ से आपने फिर इसको भी पाकिस्तान, फिर जब आपने ये इशू हुआ है आपको ये पासपोर्ट, आपने उसकी डेट लिख दी, फिर ये भी एक्सपायर हो रहा है उसकी डेट लिख दी। नीचे फिर आपने आई ओन अ फॉरेन डिग्री, आपने वो लिख दिया। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है 4 ईयर्स या 3 ईयर्स वो है। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी डिग्री का नाम लिख देना है, पूरा लिख दें या शॉर्ट लिख दें। उसको करने के बाद आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जाके आपने सेलेक्ट करना है अपने सिटी को, तो ऑटोमेटिकली आपको यूनिवर्सिटी 3-4 दे देगा, उसमें से आप लिख लें, एक लिख लें। अगर नहीं है तो यहाँ से क्लिक करके आप उस यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी को। जैसे आपने यहाँ से फिर आप यहाँ से अपनी कंट्री वगैरह को सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप पाकिस्तान को, फिर उसके बाद आप इस तरह करके अपने फर्दर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरी इन्होंने ऑलरेडी दे दी हुई है, तो मैं इसको यहाँ से ये सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, ये भी हो जाएगा। उसके बाद नीचे फिर उन्होंने ग्रेड ये पूछा हुआ है, ग्रेड आ गया। उसके बाद ये जिस डेट को आपने वो डिग्री अपनी कंप्लीट की है वो यहाँ पे आप लिख दें। उसके बाद आप लिखने के बाद आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ से आपसे पूछ रहा है इस पोर्शन पे आने के बाद कि आपको कोई डिसेबिलिटी वगैरह तो नहीं है, इस टाइप की चीज़ अगर कुछ नहीं है आपके पास, तो आप इसको नो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर दें। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आपने 1 बाय 1 करके अपनी जो चीज़ें हैं वो अपलोड करनी है। जैसे देखिए मैंने लैंग्वेज सर्टिफिकेट को कर लिया, उसके बाद CV, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट जो है, आप ट्रांसक्रिप्ट के साथ आप उसकी डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट दोनों को इकट्ठा आप एक ही पेज पे करके PDF में उसको भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने पासपोर्ट और ID कार्ड, पासपोर्ट कर दें ID कार्ड, दोनों में से किसी, जैसे देखिए यहाँ से आपने एक एक करके सिलेक्ट करके सबको इस तरह करके आपने कर देना है। पहले इसको करेंगे, यहाँ से चूज फाइल करेंगे, फिर उसको अपलोड कर देंगे। इसको करने के बाद भी आपने इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आप इस पेज के ऊपर आ गए हैं। इस पेज पे आने के बाद ये आपको इस तरह करके बता रहा है कि ये देख लें, ये जो चीज़ें आपने यहाँ पे लिखी हैं ये आपकी थोड़ी सी आपको दे रहा है इन्फॉर्मेशन कि ये आपने चीज़ें इसको बताई हैं, ये आपने उसको डेट ऑफ बर्थ बताई है, ये आपने उसको अपना एड्रेस बताया है, फिर उसको नीचे आपने अपनी डिग्री बताई है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें, इसके अंदर कोई चीज़ का कोई मसला तो नहीं है, कोई चीज़ आपने गलत तो नहीं बताई। सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह पढ़ें। अच्छी तरह पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे इसको कंफर्म पे क्लिक करना है। इसको कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये आपको कह रहा है कि वंस द एप्लीकेशन इज कंफर्म यू आर नॉट अलाउड टू मॉडिफाई और इंटीग्रेट द इंसर्टेड डेटा एनी मोर।
तो आपने इसको ओके कहना है। ओके कहने के बाद ये अभी आपका हो गया। इसके बाद आपने यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने पास रखने के लिए, या फिर आप सिंपली अभी आपने यहाँ से पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दोबारा ये आप अपना आईडी डालें और इसको दोबारा इसको ओपन करें। आपने दोबारा अपना यूज़र नेम लिखा, पासवर्ड, फिर एंटर आने के बाद अभी ये आपको इस पेज के ऊपर ले आया है। ये आपको बता रहा है कि जी अभी आपने इनको पेमेंट करनी है। ये देखें बता रहा है कि जी आप इसको पेमेंट करें, मैनेजमेंट इन इंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, ये उस प्रोग्राम का है। उसके बाद आपने एडमिशन टू ओपन एक्सेस मास्टर डिग्री कोर्सेज, इसके बाद आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अभी ये आपसे पूछ रहा है कि जी आपने पेमेंट आपने कैसे करनी है। आपने ये जो पहले ऑप्शन है पागोपा इमीडिएट पेमेंट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने दोबारा इसको कम इन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अभी आपसे पूछ रहा है कि आप लॉगिन विद SPID या फिर आप लॉगिन विद योर ईमेल। आपने यहाँ पे अपना ईमेल के साथ इसको यहाँ पे ईमेल पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल को एंटर करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल को एंटर कर दिया। इसके बाद आपने फिर इसको भी कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू पे फिर क्लिक करना है। इसको कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अभी आपसे पूछ रहा है कि आपने पेमेंट आपने इसको पेमेंट कैसे करनी है। इसके लिए आपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप आने के बाद आपने अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से 30 यूरो पे करने हैं। 30 यूरो पे करने के बाद इस तरह आपकी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी।